I'm sorry again. I'll again show this particular part. Very sorry. Okay, so SQL part 6, this we are going to cover. These are the some common instructions that I have already given to you. These many points we will cover today. Our today's agenda is what we have to cover: review of last session, that is group by clause, having clause, as well as what order by clause. Then we'll see the today's agenda is what we have to cover all the set operations like union, intersect, and difference. Then we have to cover joins. There are basically three types of joins: inner joins, natural join, and what outer join. So we will cover entire part today. Let's look at the commonly used clauses. This is what the discussion that I have already made with you. Okay, and you can see here we are talking about what having clause right now. This is what I have already covered. I'm just taking what the review so that you all will understand. The example given here, like select count ID comma country. Okay, so we are actually want to display count of what the ID, okay, with what country. So this country will be what given here as a group by clause. With group by clause, it means that on the basis of that group we have to count the number of IDs available under that country. From customer table, having count ID is greater than 10, so it will only display the country having what greater than 10. So you can observe here the outcome which is shown: France, Germany, USA, like 11, 11, and what 13, all are greater than 10. So normally having clause is used to apply condition on groups, okay, and where clause is used to apply condition on what? Per record. It is per group. Having clause is what? It is per group, and hence it is mandatory that for having clause, group by clause should be written. Okay, next, some more example, that is having clause with what? Order by clause. So here I have used all kinds of common classes of what. Here you can understand that we have used select clause, from clause, where clause, group by clause, as well as what? Order by clause and having clause. So you can see here the again the query is same, but what we have given as a condition, we will only display the records other than USA. So USA record will not come because we have said not equal to USA. So every record will be filtered other than what? USA. All the records will be displayed to us. On that record we are applying group by clause to country, so it will make a group of country wise. It will make what? Group, and having greater than or equal to 9. So those country count, okay, those who have IDs which will be there, if it is greater than or equal to 9, only that countries will be displayed, and count will be displayed as per descending order. So highest count will come on the what? On the top. So you can see from this particular response that 11, 11, and 9. So France, Germany, and Brazil is what displayed here. So USA is having actually count of 13, but we said what? Not USA, other than records other than what? USA, and that is the reason USA is not listed here. So France, Germany, and Brazil, and you can see that the highest count is on the top because order by count in descending order. So this DEST is telling us that we are actually displaying this particular record in descending order. So I have already covered this all kinds of clauses, but I have simply taken what? Review. So those who were not present into the last lecture, they will understand the things that we have covered. Now we'll focus on what? Some more examples, like what? Order by clause, where you can see that the order by clause is given like this. You can give order by with what? The conditions, and here I have given order by country. It means it indicates that by default it will treat it as ascending order. Unless you mention DESC keyword here, it will be by default acting as what? Descending. Okay, you can even mention the condition like what? Ascending, and you can see that the country is now, okay, this entire record is now sorted on the basis of what? Country. So this is what an idea behind what? Order by clause. I hope you might have used order by clause couple of times. Use it very well. You will understand the beauty of what? Order by clause. Now the next agenda is what? Set operation. There are basically various types of set operations, and you need to focus here. Today we will cover all the set operations. There are basically three types of set operation: union, then union all. This all is applicable with all. Okay, so union and union all is not a different operation, it is only union. Okay, then intersect and difference. So basically three types of operation: union, difference, and intersect. And union all, this all is applicable to union as well as difference as well as what? Intersect. So you can say union, difference, and intersect are the three set operations, and this all can be applicable to union, difference, as well as what? Intersect.
Now you must understand the difference between, like, you must be aware about what the set operation, and that is the reason I have already told you that the prerequisite for DBMS is what your discrete mathematics or discrete structure that you have already studied into what second year. Now you can understand here what exactly we are talking about. So here, when you apply union or difference or intersect, by default it takes only unique record. Okay, it takes only union record, but if unique record, but if you want redundant record, then you need to use apply all with what all the operations means. For union you can use union all, for difference you can use difference all, for intersect you can use what intersect all. Now the next part is the examples that you need to understand. Always remember, these are known as binary operation. Okay, for union we need two tables, for difference we need two tables, for intersect we need what, two tables. So the first table that you need to understand, we are gonna take this particular table. Please understand this particular table, ID and name only we have taken, and only three records are containing into what first table. Now we'll see the second table. Here again the three records are there, only 3 and 3 is what repeated, 4 and 5 is what, so 1 2 4 5 are what unique record, where 3 and 3 is what common record, so that you will understand the beauty of all the operations. So just remember this particular slide, this will be needed, okay, because we will what apply operations based on this record. So let's look at very first operation, that is union. So what union is doing, union combine what, two table. Okay, it vertically combines what, two tables. So once you have a record first second third record, and then you can simply what, combine, this is known as what, union. So you can understand here, as far as this particular syntax is concerned, from this syntax, select column name from table 1. So table 1 union table 2. So you can able to combine what, two tables using union. Always remember, union or all sets operation automatically remove what, duplicate values. Okay, so here you will understand an example, select star from first union, select star from what, second, so that you will understand that the result will be 1 2 3 4 5. See that the 3 3 is not repeated, it is coming only one time, because union is removing duplicate record automatically. If you use union all here, instead of union, if you use union all, then the third record will be repeated, that is 1 2 3 3 4 and then what, 5. So record number 3 will be what, repeated, if you are using all keyword with what, union. Next operation, always remember, there are basically two main things that you need to understand about what, any of the set operation. You might have studied this part. For set operation, okay, these are two important rules. Rule number 1, arity of the two sets. Okay, in case of DBMS it is now relation. Okay, arity of two relation must be same. Okay, arity of the two relation must be same. इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. Then data type of column 1 must be same with data type of column 1 of S. Suppose R and S, suppose R and S are two relations or two sets. Okay, for this you need to understand that column 1 of R must be same with what, data type. These two rules are important. Please focus now. I'm repeating it again. In case of set operation, these two rules are important. Let's assume that R and S are two types of relation or sets. Arity of both the sets or both the relation must be same. Arity means what? The number of attributes in R and the number of attribute in S must be what, same. तो जितने भी columns उसमें है, R में यदि दो column है और S में यदि दो कॉलम है, तो दोनों दो कॉलम दोनों, पहले तो आप लोगों को क्या चेक करना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन R एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हाट, S. Both should be what, same. This is rule number 1. Now rule number 2 is telling you that data type of column 1 of R and data type of column 1 of S must be same. Let's take an example. Let's say R is defined like this, A comma B comma C, and your
S is defined like C, comma D, comma E. Suppose we are talking about this. Now you should understand that the number of attributes here are ultimately what? The number of attributes here are, in case of R, it is 3. And in case of S, it is what? 3. So first rule is what? Satisfied. Your first rule is what? Satisfied, because the number of attributes in both the R and S is what? 3. Now the next part, data type of A should be same with what? Data type of your C. Now see what exactly A and C. A is first column of R and C is first column of S. Data type of both should be what? Same. This is important condition. Okay. One more part. If I simply write down this and again and again, if I simply, oh my God, just a minute. I have simply undone it. Okay, so what you need to do is, so I have already told you that the array means what? The number of data types should be same, and then the next part will be what? Data type of column 1 should be same as data type of column 1 of both the relation. तो यहाँ पर डेटा टाइप्स भी दोनों के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ये दोनों प्री रिक्विसाइट कंडीशंस जब सेटिस्फाई होगी तब जाके आप लोग क्या कर सकते हैं? सेट ऑपरेशन के साथ में काम कर सकते हैं. So let's look at various set operations. So I was talking about this part where you need to understand first, see that I'm talking about table 1 and table 2, first table and second table, id and name. So you can understand that the arity of first table is 2 and the arity of second table is also 2. Arity means what? The number of attributes or the number of column in a table. तो यहाँ पर ये दो कॉलम्स है, यहाँ पर भी दो कॉलम है, तो दोनों का ये यहाँ पे एक सिमिलरिटी आया. दूसरी बात जो है, data type of id should be same as this data type of id. See that it is same. Data type of name should be same as what? Data type of with this particular name. ये भी क्या है? सेम है. तो ये न्यूमेरिक है, ये टेक्स्ट है, यहाँ पर ये न्यूमेरिक है, ये टेक्स्ट है, तो दोनों भी यहाँ पर क्या होते हैं? मैच होते हैं. जब ये दोनों मैच होते हैं तो आगे आप सेट ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यूनियन क्या करेगा? दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा? कंबाइन करेगा. इट विल सिंपली कंबाइन द रिकॉर्ड्स ऑफ टू रिलेशंस. जहां पे आप ऑब्जर्व करोगे, द रिलेशन ऑफ फर्स्ट इज कंबाइंड विद व्हाट? द रिलेशन ऑफ टू, एंड इट इज अल्टीमेटली व्हाट? ऑल द सेट ऑपरेशंस आर अवॉइडिंग डुप्लीकेट वैल्यूज. आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए होगा तो आपको यूनियन ऑल ये यूज करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज व्हाट? यूनियन ऑल. ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आप यदि यूनियन ऑल का इस्तेमाल करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी ये कंसीडर करेगा. सी द एग्जांपल. ओके, and you can understand here this 3 and 3 is what? Repeated. This is important. This 3 and 3 is what? Repeated. Just focus here. Okay, you can focus here. This 3 and 3 is what? Recorded. It means that here with all option, with this particular option, with union, if you use all option, it will even consider the duplicate record as well. So this is what you need to understand. I hope it is clear to you. Let's look at the next operation, that is intersect. Now intersect, these all set operations are known to you. What intersect is doing? It identify common, that is what? Common records into two sets or two relations. तो दोनों के जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे उसको क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा. तो कॉमन रिकॉर्ड क्या है? फर्स्ट और सेकंड में थर्ड जो रिकॉर्ड था, दैट इज व्हाट? कॉमन. सो यू कैन सी दैट select star from first, intersect, select star from second. So this intersect operation will only consider common record in both the tables. तो common record दोनों टेबल के करने के लिए you need to use what? You need to use this particular value. Okay, so here you need to understand the use of this, that is what? The set intersection. Always remember, this is set intersection is used for what? Identifying common records into two tables. Now next operation is set difference. It can also be known as what? Minus. Difference and minus is one and the same operation, and here you can use that minus as a command. So select column name from table 1 minus select column name from what? Table 2. So you can understand that this particular table will only consider the tuples matching with table 1 and that does not matching with what? Table 2. यानी ऐसे records जो टेबल 2 में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. कैसे रिकॉर्ड?
ऐसे रिकॉर्ड जो फर्स्ट टेबल में है लेकिन सेकंड टेबल में नहीं है. So this is known as what? Minus. So you can understand here, see that the record number 1 and 2 is only available with what this. So ये आपको समझ में आना चाहिए, इतना ही actually इसका outcome है. ये record यहाँ पर नहीं आएंगे. Always remember this particular records will not come. So that you need to understand. Okay, this will not come. These are wrong. This is wrong. This will not come. Only this particular part will come. Okay, so what will come and what will not come, that you need to understand. This two records will what come. The third record is actually matching with what that, so it will not come. So it is always considering what the record of first table. Okay, यदि आप ये वाला कमांड इस तरीके से लिखोगे, रिवर्स वे से लिखोगे, जहां पे टेबल 1 की जगह पे टेबल 2 आएगा, टेबल 2 की जगह पे टेबल 1 आएगा, उस केस में रिकॉर्ड कौन से कंसीडर हो जाएंगे? फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ. ओके, उस केस में फोर्थ और फिफ्थ रिकॉर्ड क्या होंगे? कंसीडर होंगे. आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट? डिफरेंस. तो डिफरेंस क्या करेगा? फर्स्ट टेबल के यूनिक रिकॉर्ड सिंपली क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा. जो रिकॉर्ड सेकंड टेबल के साथ में, फर्स्ट टेबल के जो रिकॉर्ड सेकंड टेबल के साथ में मैच करेंगे, उसको वो कंसीडर नहीं करेगा. दिस इज नोन एज व्हाट? सेट डिफरेंस, और इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? माइनस. ओके, आई होप यू विल understand this particular part. If you have any doubt, you can always ask it on what? Chat window. Now next thing is what? Join. So far we have covered what? All the set operations, that is union. What it does, it combines two tables. Okay, it combines records of two tables, that is known as union. Second operation is what? Intersect. Only common records of table 1 and table 2 will be what? Displayed. Set set difference or minus, it is actually used to display first record of first table which is not matching with what? The record of second table. So only uncommon record of table 1 will be displayed by using set difference. Now you need to understand the next important part, one of the very important part and heavily used into what? Industry, that is what? Join. So what exactly is join? Join has basically three types: इनर जॉइन, आउटर जॉइन एंड नेचुरल जॉइन. जॉइन का मीनिंग क्या है? दो टेबल्स यदि आपको एक साथ में क्या करने हैं? कंबाइन करने हैं, तब जाके आप लोग जॉइन का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, जॉइन क्या करेगा? हॉरिजॉन्टली टेबल को क्या करेगा? ऐड करते जाएगा. सो जॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ जॉइन: इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन एंड आउटर जॉइन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट? द नेक्स्ट टाइप, where you need to understand. For join, you need to understand this example first. What this example is telling you, we are actually considering two tables. One is customer table, okay, having fields like ID, name, age, address and salary, and the records are mentioned here. Again, we are considering order table having order ID, date, customer ID and amount name. आप यदि देखोगे, दोनों में कोई भी field common हम लोगों ने नहीं लिया हुआ है. But you can see that this customer ID is actually acting as foreign key here, and this customer ID of what? Customer is actually what? Primary key. So इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या करना है? रिलेशनशिप जो भी है वो एस्टेब्लिश करना है, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल. एंड वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू टेबल यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट? जॉइंस. एंड एवरी जॉइन इज हैविंग प्रेडिकेट्स. यानी क्या? कौन से कंडीशन के ऊपर हम लोग जॉइन करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? प्रेडिकेट. सो लेट्स लुक एट the very first type of join, that is inner join. Inner join यानी क्या? अंदर से हम लोगों को क्या करना है? Join करना है. And the syntax for inner join is like this: select table, column 1, column 2 from table 1. Inner join with what? Table 2, means from table 1 inner join table 2 is the actually what? Syntax that you need to understand. On table, field and table 2 what? Common field. So that you need to understand. Let's look this particular part by using example. I have already told you regarding what? There are two types of table we are considering. One is customers and another one is what? Order. दो टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट आईडी, नेम, अमाउंट एंड डेट, ये चार फील्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं. कहां से? फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स. यानी दोनों का यहां पर इनर जॉइन ले रहे हैं. इनर जॉइन कौन से कंडीशन पर ले रहे हैं? ऑन कस्टमर आईडी, customers dot id should be equal to orders dot customer underscore id. ये कंडीशन के ऊपर, मींस क्या? कस्टमर में जो आईडी कॉलम है
और ऑर्डर के टेबल में जो कस्टमर आईडी है, दोनों के वैल्यूज जहां पर मैच होंगे उनके हम लोग आईडी, नेम, अमाउंट और डेट क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो दोस्तों इनर जॉइन के साथ में हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं और कंडीशन यहां पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, इनर जॉइन। and you can see the result will be displayed like this। तो यहां पर कस्टमर आईडी 3324 यही सिंपली क्या थे, कॉमन थे, किसमें, कस्टमर्स में और ऑर्डर में, और सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स आपके सामने क्या किए गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी। ये आप लोग यदि एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ऑलवेज रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेडिकेट एंड जॉइन। जॉइन यानी क्या, इनर जॉइन। प्रेडिकेट यानी क्या, किसके ऊपर, ऑन। ऑन यानी क्या, ये कंडीशन के ऊपर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दैट इज कस्टमर्स डॉट आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर्स अंडरस्कोर आईडी। इनके वैल्यूज जहां पर मैच होंगे वही सिंपली वही रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। दिस इज नोन एज इनर ज्वाइन। सो विथ इनर ज्वाइन देयर विल बी ऑलवेज व्हाट, कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विल बी व्हाट, नेचुरल ज्वाइन। द नेम इंडिकेट्स दैट नेचुरल ज्वाइन ये क्या करेगा, दो टेबल के जो कॉमन कॉलम्स है उनके ऊपर ज्वाइन कर देगा। यानी ऑन वाला कंडीशन नहीं आएगा। ऑन कंडीशन हम लोग जब देते हैं तब हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि कौन से दो फील्ड के ऊपर हम लोग कंडीशन मैच करना चाहते हैं। लेकिन नेचुरल ज्वाइन नेम इंडिकेट्स वी हैव टू नेचुरली ज्वाइन एंड दैट इंडिकेट्स दैट सिलेक्ट जो भी वैल्यूज होंगे फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन व्हाट टेबल 2। यानी क्या करेगा, ये दो टेबल के जो कॉलम एट्रीब्यूट्स है, जो दोनों कॉमन कॉलम है उसके ऊपर क्या कर देगा, कंबाइन करेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कस्टमर्स में और ऑर्डर्स में कोई कॉमन कॉलम नहीं है। नेम, कॉलम का नाम जो भी हो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों में। ऐसा सेम नेम नहीं है तो नेचुरली यहां पर इसके वैल्यूज क्या आएंगे, एम्प्टी। यदि सेम होते, दो कॉलम के वैल्यू नाम यदि सेम होते तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो क्या कर देता, ज्वाइन परफॉर्म करता। सो इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनर ज्वाइन हमेशा कोई कंडीशन के ऊपर होता है। नेचुरल ज्वाइन बाय डिफॉल्ट जो कॉमन नाम होंगे उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज नोन एज व्हाट, नेचुरल ज्वाइन। Now the next type of join is what, outer join. Outer join is again having three types. Okay, one is right outer join, left outer join, and what, full outer join. Left outer join, right outer join, and full outer join. Okay, अब outer join और inner join में difference क्या है? Inner join में हम लोगों ने क्या देखा था, यदि आप दो टेबल देते हैं, okay, वो दोनों टेबल के जो कॉमन रिकॉर्ड्स है उसी को क्या करेगा, वो सिंपली आपके सामने डिस्प्ले करेगा। लेकिन आउटर ज्वाइन यानी क्या, जो रिकॉर्ड्स मैच नहीं होते उनको भी वो कंसीडर करेगा। ओके, तो तीन टाइप के आउटर ज्वाइन है। एक है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मीनिंग क्या है, मान लीजिए मैं यहां पर यदि एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, सपोज आई वाज टॉकिंग अबाउट आर। ओके, मैं यदि यहां पर इस तरीके से लिखता हूं कि आर का मुझे क्या करना है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लेना है, किसके साथ में, एस के साथ में। ओके, आर और एस को हम लोग लेफ्ट आउटर ज्वाइन से क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा दोस्तों, वो समझिए, आर एंड एस, ओके, जो कॉमन रिकॉर्ड है उनको कंसीडर करेगा, और जो कि ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है यानी क्या, लेफ्ट वाला जो रिलेशन है उसके बचे हुए रिकॉर्ड्स यानी अनकॉमन रिकॉर्ड्स भी क्या करेगा, अनकॉमन रिकॉर्ड्स भी क्या करेगा, कंसीडर करेगा। Okay, so that is what the beauty of left outer join. यानी क्या, common record of R and S will be taken as well as the records which are records of R which are not matching with S will also be taken. S के नहीं आएंगे, सिर्फ R के यहाँ पर आएंगे। तो ये आपको समझना जरूरी है। वही यदि आप लोग राइट आउटर ज्वाइन करोगे तो S के रिकॉर्ड्स भी सारे कंसिडर करेगा। फुल आउटर ज्वाइन करोगे तो क्या करेगा, कॉमन भी लेगा और दोनों के अनकॉमन रिकॉर्ड्स भी आपके सामने क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सो लेट्स लुक एट द यूज ऑफ दिस both. Okay, so that you will understand the beauty. So I'm talking about outer join. I have already told you that there are basically three types of outer join: left outer join, right outer join, and full outer join. So let's look at on what the left outer join. Left outer join क्या करेगा वो देखिए, ये सारा from में ही हम लोगों को लिखना रहता है। Select table कॉलम 1 एज वेल एज व्हाट, टेबल 2 कॉलम 2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉलम के नाम ले रहे हैं। फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, यानी ऑन कंडीशन यहाँ पर दे रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन। ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहे हैं, ये वाले फील्ड के ऊपर। तो इनर ज्वाइन जैसे ही है, मैंने बोला आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन में मेजर डिफरेंस नहीं है। इनर ज्वाइन सिंपली क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स को ही मैच करेगा। ओके, लेकिन आउटर ज्वाइन क्या करेगा, इनर ज्वाइन को तो कंसिडर करेगा ही करेगा, प्लस लेफ्ट में जो कॉलम है यानी इसके लेफ्ट में कौन सा टेबल है, टेबल 1। टेबल 1 के सारे रिकॉर्ड्स भी क्या करेगा, कंसीडर करेगा। सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। सिलेक्ट आईडी, नेम, अमाउंट, डेट फ्रॉम कस्टमर, लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स
on customers डॉट id इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर id। सेम कमांड हम लोगों ने किसके लिए लिखा था, आप लोगों को यदि याद होगा तो सेम कमांड हम लोगों ने इनर जॉइन के लिए लिखा था। तो यहां पर देखिए क्या होगा, क्वेरी में आउटपुट आया जहां पे रमेश ये वाला टेबल जो भी, ये वाला जो भी मींस ये आईडी एक्चुअली ऑर्डर में नहीं था, तो यहां पर इसकी जगह पे क्या लिखा गया, नल, क्योंकि अमाउंट और डेट ये फील्ड कहां से लिए गए हैं, ऑर्डर से, और आईडी और नेम ये फील्ड कहां से लिए गए हैं, कस्टमर से। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेफ्ट में जो भी है, लेफ्ट में कौन है, कस्टमर है, देखिए लेफ्ट में कौन है, कस्टमर है, और राइट में कौन है, ऑर्डर है। ओके, सो जो भी लेफ्ट वाले जो भी है उसके सारे रिकॉर्ड्स कंसीडर करेगा। तो कौन से एडिशनल रिकॉर्ड आपको अदर देन इनर जॉइन दिखाई दे रहे हैं, वो आपको समझना जरूरी है। वेरी फर्स्ट इज दिस, ये वाला रिकॉर्ड एक एक्स्ट्रा आया है, और ये बाकी तीनों रिकॉर्ड जो भी है लास्ट में, ये सारे क्या आए हुए हैं, एक्स्ट्रा आए हैं। ये एक्स्ट्रा आए यानी क्या, इसका मीनिंग ये है कि दीज आर द रिकॉर्ड्स व्हिच आर एक्चुअली अवेलेबल इनटू व्हाट, टेबल 1 और कस्टमर टेबल, लेकिन जो ऑर्डर टेबल के साथ में मैच नहीं होते। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सबको कंसीडर करेगा, राइट वाले टेबल के सिंपली वही रिकॉर्ड्स को कंसीडर करेगा जो लेफ्ट के साथ में क्या होते हैं, मैच होते हैं। दिस इज नोन एज लेफ्ट आउटर जॉइन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज व्हाट, राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन में डिफरेंस कुछ नहीं है, जो राइट में है उसके सारे रिकॉर्ड्स लेगा, और लेफ्ट में जो है उसके साथ में सिंपली जहां पे कॉमन मैच होगा उतने ही रिकॉर्ड्स को कंसीडर करेगा। यानी क्या, ऑर्डर्स जो टेबल है, ओके, यहाँ पे एग्जांपल में यदि आप लोग देखोगे, यहाँ पर ऑर्डर ये वाला टेबल जो भी है वो राइट में आता है, राइट आउटर जॉइन के, और कस्टमर टेबल कहां पर आता है, राइट आउटर जॉइन के लेफ्ट में आता है। ओके, तो लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि राइट आउटर जॉइन यूज करे तो राइट आउटर जॉइन क्या बोलेगा, राइट वाला जो टेबल है जो कि ऑर्डर्स है उसके सारे रिकॉर्ड्स कंसीडर करेगा, लेकिन लेफ्ट के ऐसे ही रिकॉर्ड्स कंसीडर करेगा जो राइट वाले टेबल के साथ में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। सो आप ये देखिए, यहाँ पे आउटपुट आप लोगों के सामने डिस्प्ले होगा 3 3 2 एंड 2। यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, मींस एक्चुअली जो ऑर्डर नाम का जो भी टेबल था उसके सारे रिकॉर्ड्स कंसीडर हुए। यदि मैच नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, आईडी और नेम की जगह पे क्या आ जाता, नल आ जाता। सो दोस्तों ये समझना जरूरी है, यहाँ पे नल का इस्तेमाल होता है किसमें, आउटर जॉइन में। सो लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। नेचुरली फुल आउटर जॉइन क्या होगा, रिजल्ट ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन यूनियन रिजल्ट ऑफ व्हाट, राइट आउटर जॉइन। तो मैं फिलहाल आप लोगों को एक ही कमांड में, एक ही चीज में आपको ये समझा दूं कि फुल आउटर जॉइन यानी क्या। फुल आउटर जॉइन इज इक्वल टू लेफ्ट आउटर जॉइन यूनियन, ये वाला सिंबल यूनियन का है, यूनियन राइट आउटर जॉइन। ओके, तो ये आपको समझना जरूरी है। फुल आउटर जॉइन यानी क्या, लेफ्ट आउटर जॉइन की जो भी रिजल्ट्स है वो राइट आउटर जॉइन के रिजल्ट्स के साथ में सिंपली क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे। दैट इज नोन एज व्हाट, फुल आउटर जॉइन, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसलिए उसको सेपरेटली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा, यूज ऑफ व्हाट, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। ये आपको ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों को कब समझ में आएगा, यदि आप लोग यहाँ पर फोकस करोगे। ये रिलेशंस जो भी है जो आप लोगों को दिए हैं, यहाँ पर यदि आप लोग फोकस करोगे तो इसके ऊपर मैं बोलूंगा आपको, जहां पे आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। आई एम रिपीटिंग, आई एम टेकिंग व्हाट, रिवीजन ऑफ यू ऑल। ओके, जिसमें सारे के सारे जो भी ये जो भी ऑपरेशंस है, ओके, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, एज वेल एज व्हाट, नेचुरल जॉइन, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यही स्लाइड के ऊपर मैं उसको सारा रिपीट कर दूंगा। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं नेचुरल जॉइन की। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं नेचुरल जॉइन, उसके बाद इनर जॉइन और उसके बाद आउटर जॉइन। नेचुरल जॉइन का मीनिंग क्या है, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल, इन दोनों के बीच में यदि आप नेचुरल जॉइन ले रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, सिलेक्ट जो भी फील्ड के नाम है फ्रॉम कस्टमर टेबल, नेचुरल जॉइन ऑर्डर टेबल, यानी आप नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल जॉइन विथ व्हाट, फ्रॉम में आएगा, क्या आएगा, कस्टमर टेबल, नेचुरल जॉइन ऑर्डर टेबल, और उसके आगे आप लोग लिखोगे कि आपको कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप नेचुरल जॉइन की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल जॉइन क्या बोलेगा, इनमें कोई कॉलम कॉमन है क्या, आईडी इज नॉट मैचिंग विद दिस, नेम इज नॉट मैचिंग विद दिस, एज इज नॉट मैचिंग विद दिस, एड्रेस इज नॉट मैचिंग विद दिस, सैलरी इज नॉट मैचिंग विद दिस, यानी दोनों टेबल में कोई कॉमन नेम का कॉलम नहीं है, इसलिए नेचुरल आउटर जॉइन जो भी है वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ओके, सो दैट इज वन पार्ट। नाउ सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या बोलता है, ये नेचुरल जॉइन जैसा ही है, लेकिन इनर जॉइन में आप खुद कंडीशन दे सकते हैं, यानी किसके बीच में आप लोग
कौन से वैल्यूज को आप लोग मैच करना चाहते हैं। ओके, सो सिलेक्ट जो भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जो भी आप लोग लेना चाहते हैं फ्रॉम कस्टमर टेबल, देन इनर जॉइन ऑर्डर टेबल ऑन अब आप कंडीशन लगाओगे किसके ऊपर, जो कस्टमर टेबल है कस्टमर डॉट आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, इन दोनों के वैल्यूज जहां पर मैच होंगे। अब देखिए कौन से वैल्यूज मैच होंगे, ये 1 और 2, ये रिकॉर्ड इसमें है क्या, 2 है, 1 नहीं है, तो 1 वाला नहीं आएगा, ये वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा, यानी ये वाला रिकॉर्ड निकल जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड नहीं आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। ओके, तो ये वाला रिकॉर्ड निकल जाएगा। ओके, निकल जाएगा, यानी मैं इसको सिंपली क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, दिस रिकॉर्ड विल नॉट कम। ओके, उसके बाद कौन सा रिकॉर्ड आएगा, 2 and 2, यहां पर देखिए ये आईडी के 2 और यहां पर ये वाला 2 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आएगा, ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है, इसका मतलब ये वाला रिकॉर्ड आएगा। कौन सा रिकॉर्ड आएगा, सो दिस सेकंड रिकॉर्ड विल कम। ओके, तो सेकंड रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद थर्ड रिकॉर्ड चेक कीजिए, 3 एंड दिस पर्टिकुलर 3 इज मैचिंग, तो थर्ड रिकॉर्ड भी आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे ये थर्ड रिकॉर्ड भी आएगा। ओके, उसके बाद आप देखिए कौन सा रिकॉर्ड नहीं आएगा, देखिए 4 वाला भी रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैच हो रहा है, 4 इज मैचिंग विद व्हाट 4, सो 4 वाला रिकॉर्ड भी आपका यहाँ पर आएगा। सो वी कैन टेक व्हाट 4, we can take what 4, then you see that 5 6 7 is not available here। यहां पर 5 6 7 जो भी है, मींस आपको एक्चुअली कंपेयर क्या करना है वो समझिए, कंपेयर क्या करना है, यू नीड टू कंपेयर व्हाट दिस 2 कॉलम। ओके, कौन से 2 कॉलम आपको कंपेयर करने हैं, ये वाला कॉलम, ओके, और ये वाला कॉलम आप कौन से कॉलम के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, इस कॉलम के साथ में। इस कॉलम वैल्यूज जो भी है इनके हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे 2 था, देखिए 2 है इसलिए हम लोगों ने 2 को कंसीडर किया, 3 है इसलिए 3 को कंसीडर किया, इसलिए यहां पर आपको समझ में आएगा कि 5 इज नॉट देयर, 6 इज नॉट देयर, 7 इज नॉट देयर, ये नहीं है, तो ये वाले रिकॉर्ड जो भी वो नहीं आएंगे। तो जो रिकॉर्ड नहीं आएंगे उनको मैं येलो मार्क कर देता हूं, सो दैट आपको समझ में आएगा कि दिस रिकॉर्ड्स विल नॉट कम। तो यहां पर ये वाले जो भी रिकॉर्ड्स है, दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स विल नॉट कम। ओके, तो ये वाले रिकॉर्ड नहीं आएंगे। ओके, अब यहां पर देखिए इसके कौन से रिकॉर्ड्स आएंगे, तो ये वाला रिकॉर्ड है, ये आएगा, ये वाला रिकॉर्ड है आएगा, ये रिकॉर्ड आएगा, ये रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि 3 2 3 4 ये वैल्यूज यहां पर अवेलेबल है। तो डिस्प्ले कौन से रिकॉर्ड्स होंगे, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं आप लोगों को, जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर में मैं जिसको कवर कर रहा हूं, यानी ये वाले रिकॉर्ड जो भी है ये क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, और इसके भी सारे के सारे रिकॉर्ड जो भी वो डिस्प्ले होंगे, लेकिन जो फील्ड हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उतने ही फील्ड्स यहाँ पर क्या किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे। तो नेचुरली क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर लॉस क्या है, ये वाला जो रिकॉर्ड है ये और ये वाले रिकॉर्ड्स ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और सिंपली यहाँ पर इतने ही रिकॉर्ड्स क्या किए जाएंगे, कंसिडर हो जाएंगे। तो इनर जॉइन में क्या होता है या नेचुरल जॉइन में क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड्स आपके चले जाएंगे, और ये रिकॉर्ड यदि आपको चाहिए है तब जाके आप लोगों ने आउटर जॉइन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आउटर जॉइन क्या करेगा, ये क्रॉस किए हुए जो रिकॉर्ड्स है ये यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करेगा, ये सारे रिकॉर्ड्स को कंसीडर करेगा, राइट में है तो सारे राइट के रिकॉर्ड्स को कंसीडर करेगा, फुल है तो सारे फुल रिकॉर्ड्स यानी दोनों रिकॉर्ड्स को क्या कर लेगा, कंसीडर करेगा। यानी क्या, देखिए आप यहां पर सोचिए, यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, आईडी रमेश 32 अहमदाबाद 2000 ये लिखता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर उसको आईडी है क्या, नहीं है, तो उसके ऑर्डर आईडी में नल आएगा, डेट में नल आएगा, कस्टमर आईडी में नल आएगा, और अमाउंट में क्या आएगा, नल आएगा। यानी क्या, लेफ्ट वाले राइट वाले रिकॉर्ड, लेफ्ट आउटर जॉइन में राइट वाले रिकॉर्ड क्या आएंगे, नल आएंगे। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज व्हाट, जॉइन, दैट इज इनर जॉइन, natural join and outer join. I hope you might have understood this. If you have any difficulty, you can always ask me the questions. Now we have only last 2 minutes, तो मैं आपके सामने यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ये शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों के सामने जो भी है क्विज शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग ये क्विज जो भी है इसको देने की कोशिश करें। पोल मैं आपके सामने सबसे पहले शेयर कर रहा हूं दोस्तों, आई एम शेयरिंग पोल ऑन व्हाट यूट्यूब फर्स्ट, सो दोज हु आर ऑन यूट्यूब कैन एबल टू सी द पोल नाउ। आपको पोल का लिंक मैंने यूट्यूब के ऊपर दिया है। दोज हु आर ऑन जूम आई एम शेयरिंग विथ यू एज वेल। ओके, जूम के ऊपर भी मैंने शेयर किया है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, ये क्विज जो भी है, ये पोल जो भी है ये देना है, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। इमीडिएटली मैं अटेंडेंस भी शेयर करने वाला हूं।
I have shared the quiz as well as what attendance. मैं पोल भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ. Okay, those who are on Zoom can able to see the poll now. I have launched the poll. Give the polling also. So last 15 seconds for the poll and your poll will end. डियर फ्रेंड्स, किसी ने क्लासरूम जो भी वो छोड़ना नहीं है. मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है. ओके, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि लास्ट में मैं आप सभी लोगों का आज फोटोग्राफ लेने वाला हूं. दोज हु आर एक्टिव, आई जस्ट वांटेड टू चेक. ओके, सो मैं आपका पोल एंड कर रहा हूं. लगभग 62 स्टूडेंट्स ने पोल जो भी वो दिया है. ओके, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट्स विथ यू ऑल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द पोल वाज 3 टाइप्स ऑफ set operation in SQL are union, intersect and dash. Right answer is what? Difference. 92% students have given what? Right answer. So absolutely no problem. It's good that many of you have given what? The answer like difference. There are basically 3 types of set operation that we have discussed today: union, intersect and difference. Some of you have given addition and subtraction, which is wrong. Right answer is what? Difference. Second question is common records from two tables are displayed using dash SQL command. ऐसा कौन सा कमांड है कि जिसके कॉमन रिकॉर्ड्स जो भी वो डिस्प्ले होंगे? ओके, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए थे: यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्ट एंड नन ऑफ द अबव. 87% students have given right answer. I'm really proud of you all that you have given right answer. That is what right answer is what? Intersect. तो intersect दो टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करने देगा. यूनियन और सेट डिफरेंस जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ने दिए है आंसर, दैट इज रॉन्ग. राइट आंसर इज व्हाट? इंटरसेक्ट. I hope I have shared with you what the right answer, and this is what our today's agenda that we have already covered, that is review of last session, set operations like union, intersect and what difference, or types of joins, that is inner, natural and what outer join. तो यहाँ पर आपका सारा SQL पार्ट जो भी वो कंप्लीट होता है. यूनिट नंबर 2 में जो SQL पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है. कल से यानी आने वाले लेक्चर से हम लोग क्या देखने वाले हैं? PL/SQL जो भी वो देखेंगे. ओके, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपका कैमरा जो भी वो ऑन करें. ओके, सो दैट मैं आप लोगों का फोटोग्राफ यहाँ पर ले पाऊंगा. मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कैमरा आप लोग ऑन रखें. ऑन योर कैमरा. Already your entire record is what displayed on YouTube. Okay, because it's YouTube live, right? Kindly on your camera. आपका कैमरा ऑन होगा तो मुझे फोटोग्राफ लेते आएगा दोस्तों. ओके, आई एम टेकिंग फर्स्ट फोटोग्राफ. जिन लोगों को कैमरा का इश्यू है वो लोग मुझे लिख सकते हैं चैट विंडो के ऊपर.
ओके, कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था कि जिन जिन लोगों के घर में जो भी डेकोरेशन किया हुआ है, ओके, गणेश जी का, वो डेकोरेशन आप लोगों को उसमें क्या करना था, अपलोड करना था। देखिए, ऐसे जो भी असाइनमेंट्स मैं देता हूँ जस्ट फॉर द फन, ओके, और कहा सभी लोगों को एक मौका मिलेगा। नेचुरली क्या होता है, ये गणेश फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं घर के, और सारे जितने भी गणेश जी है उनके दर्शन हम लोग लेने जाते हैं। ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट इज रियली टफ कि आज की डेट में हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि बाहर भी जो गणेश जी है वो बिठाए हुए नहीं है इस टाइम। ओके, सभी लोगों ने अपने अपना जो सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए ये किया हुआ है। तो अभी बहुत सारे गणेश जी के दर्शन हमारे नहीं होते, तो इसलिए मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि जैसे मैंने अपना भी क्या किया हुआ है, घर का जो गणेश जी का डेकोरेशन है वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अब सभी लोगों को भी रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी क्या करें, शेयर करें। आप में से कई स्टूडेंट, 10+ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग क्या करें, शेयर करें आपका जो भी गणेश जी का डेकोरेशन है। हम सभी लोग यहीं से बैठ के क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, वर्चुअल दर्शन आप सभी के गणेश जी का यहाँ पर क्या हो सकता है, इजीली हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के लिए ये बोला हुआ है, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट मैंडेटरी असाइनमेंट, इसको कोई मार्क्स नहीं है। जस्ट फॉर व्हाट, हम सभी लोगों को एक एक्टिवली हमारे घर पर जो गणपति बिठाया हुआ है, वो सभी लोगों को, हम लोगों को क्या करना है, वो गणेश जी के दर्शन हम सभी लोगों को देना था। तो ये उसके पीछे का लॉजिक था दोस्तों। और कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। मैं आप सभी लोगों को ये बोल रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आप सभी लोगों ने क्या करना चाहिए, एक्टिवली एक्टिवली ग्रुप, आपका ये जो भी ग्रुप है, कौन सा, गूगल क्लासरूम जो भी है, उसमें आप लोगों ने क्या करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आप देखिए, डेरे जो है उसने क्या किया हुआ था, एक यहाँ पर एक गूगल क्लासरूम जो है उसमें क्या किया था, एक आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए कुछ शेयर किया हुआ था। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोगों ने क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम गूगल क्लासरूम में एंट्री करना चाहिए, देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी एफर्ट जो भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों के साथ में एक क्विकली क्या कर रहा हूं, गूगल क्लासरूम जो भी है वो शेयर कर रहा हूं, आपका गूगल क्लासरूम आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों में से कितने लोग सच में एक्टिवली इसमें फोकस कर रहे हैं। तो जो लोग एक्टिवली फोकस नहीं कर रहे हैं आप लोगों के गूगल क्लासरूम में, मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, बी एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर गूगल क्लासरूम। मैंने गूगल क्लासरूम सभी के लिए ओपन रखा है। यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ नहीं कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स या आईटी के, जिनको आना है आप लोग आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर गूगल क्लासरूम जो भी है आप लोगों को दिखाई देगा, डीबीएमएस का जो मैं ओपन कर रहा हूं। ओके, यहाँ पर इस गूगल क्लासरूम में मैं बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, देखिए। ओके, दैट इज गणपति डेकोरेशन। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि मैंने अपना जो डेकोरेशन है, इंस्ट्रक्शन में ही मैंने अपना डेकोरेशन जो भी है वो आप सभी लोगों के सामने क्या किया था, शेयर किया था। दिस इज व्हाट द गणपति दैट वी हैव गॉट। हमारे घर में ये गणपति जी जो है बिठाए गए। आप यदि देखोगे इसमें, तो आपको यहाँ पर फोकस कहां पर करना जरूरी है, जो एक्चुअली गणपति बनाया है। सी दैट दिस इज व्हाट द गणपति। ओके, जहां पे मेरा एक्चुअली पॉइंटर है, ये गणेश जी एक्चुअली मेरे बच्चे ने क्या किया हुआ है, मेरे बेटे ने ये बनाया हुआ है घर पे। तो आप सभी लोगों ने किया रहेगा। ये डेकोरेशन जो भी है ये है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बहुत बढ़िया नहीं है डेकोरेशन, जैसा है वैसा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उम्मीद है आप सभी लोग, आपका भी डेकोरेशन जो भी हो क्या करोगे, शेयर करोगे। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी डेकोरेशन क्या किया हुआ है, शेयर किया है। ऐसे करीबन 8 स्टूडेंट्स ने डेकोरेशन शेयर किया है, और 2 स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 10 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन। बाकी सभी लोग आपका आपका जो भी डेकोरेशन है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी असाइनमेंट्स आप लोगों को दी है दोस्तों। ओके, वो असाइनमेंट्स आप लोग देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी सर्टिफिकेट्स आप लोग अचीव कर रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डालना है। काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स जो भी है वो दिए। आप देखिए, ऑलमोस्ट 65 स्टूडेंट्स हैव व्हाट सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट्स। Remaining students, if you have earned the certificates related to DBMS or SQL, kindly upload here. This is point number 1. यहाँ पे अपलोड करने का बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका स्लो लर्नर का या फास्ट लर्नर का असाइनमेंट एक क्या होगा, कम हो जाएगा। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, मैंने एमएस एक्सेस के ऊपर एक टेस्ट लिया था, और देखिए सिर्फ 9 और 3, 12 स्टूडेंट्स हैव ओनली सबमिटेड दिस। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाले असाइनमेंट जो भी है, ये आप लोगों को जो भी असाइनमेंट दिया गया है, कौन सा, एमएस एक्सेस का, जो कि कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस के अंदर हम लोगों ने लिया है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, सबमिट करना है। ऐसा ही असाइनमेंट मैंने एक्सेल के लिए लिया है। मैंने अभी तक वो असाइनमेंट आपको दिया नहीं है, बिकॉज आई एम वेटिंग कि आप एमएस एक्सेस का कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सेल का भी दूंगा। तो दोस्तों, ये आपको सबमिट करना है। इसके बाद प्री रिक्विसाइट का टेस्ट जो भी है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों ने
प्री रिक्विसाइट का टेस्ट नहीं दिया है, जो कि मैंडेटरी है, वो आपको देना जरूरी है। ओके, इसके अलावा यूनिट नंबर 1 में एक कंपलसरी असाइनमेंट मैंने दिया था कि आप लोगों को ईआर डायग्राम निकालना है और ईआर डायग्राम आपको सबमिट करना है। तो 53 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड इट, स्टिल 49 स्टूडेंट्स आर व्हाट रिमेनिंग। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और आपके असाइनमेंट जो भी है आप लोग क्या करें, सबमिट करें। दिस इज रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ओके, वो यहाँ पर उसका वीडियो भी दिया है और कौन सी असाइनमेंट है उसका फोटोग्राफ भी दिया है, तो आप सभी लोग याद रखें कि ये आपको सबमिट करना है। उसके बाद एक वीडियो मैंने आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस यहाँ पर दिए हैं, यूनिट नंबर 1 के सारे वीडियोस है। जिन लोगों के कुछ लेक्चर्स मिस हुए रहेंगे, आप लोगों को सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वीडियो इजीली। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक वीडियो सेशन मैंने आप लोगों का लिया था, 3 वीडियो मैंने शेयर किए थे, डेटा मॉडल का, क्वेरी लैंग्वेज का और उसका एक क्विज मैंने दिया था। उसमें से 60 स्टूडेंट्स हैव गिवन दैट क्विज, सो आई विल ओनली कंसीडर द अटेंडेंस ऑफ 60 स्टूडेंट्स नाउ। ओके, उसके बाद ये वाला जो भी है गणपति डेकोरेशन का ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया है। यू ऑल विल टेक ऑल दिस असाइनमेंट्स सीरियसली, और प्लीज आप सभी लोग एक्टिवली यहाँ पर क्या कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पर शिवानी डेरे ने क्या किया था, डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड टेबल आप लोगों के लिए दिया हुआ है। आप सिंपली उसको ओपन करें, देखिए ये डिफरेंस जो भी है आपको एग्जामिनेशन में काम आता है। 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड टेबल, उसका जवाब उसने आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे साक्षी ने क्या किया है, जवाब उसको थैंक्स बोला है, किसको, अश्विनी को। ऐसे ही ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोग भी थैंक्स करें, थैंक्स वहां पर लिखते रहे। उसके बाद मैं भी यहाँ पर कुछ वीडियोस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियोस को भी आप लोग रिप्लाई करते रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसे लगेगा कि आप सभी लोग एक्टिवली क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, दिस इज व्हाट फ्रॉम माय एंड, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट एसक्यूएल। नेक्स्ट इसमें से हम लोग पीएल एसक्यूएल के साथ में क्या करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को यदि कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली डाउट जो भी वो लिख सकते हैं। यदि 2 या 4 स्टूडेंट्स के एट टाइम डाउट्स आते हैं, मैं आप लोगों का 3:30 बजे के बाद कभी भी जब भी आप लोगों को समय मिलेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो ले सकते हैं। तो अभी तक के आपके जितने भी डाउट्स है, वो यूनिट नंबर 1 के रहे या यूनिट नंबर 2 के रहे, मुझे यदि आप लोग इन्फॉर्म करोगे तो मैं आप लोगों के डाउट्स जो भी है वो सॉल्व कर सकता हूँ। बिफोर दैट मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को जो भी कुछ डाउट्स है, जो भी वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो मैंने अपलोड किए हैं, आप सभी लोगों को गुजारिश है कि आप लोगों को वीडियो जो भी है वो एक बार कम से कम देखिए, तो आपके डाउट्स शायद उसमें से क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय एंड। कल आप लोगों को अनंत चतुर्दशी है, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ आपके एसएनजेबी के विजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से। आप सब लोग ये गणेश फेस्टिवल जो है इसमें डेफिनेटली एंजॉय करोगे, लेकिन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे कनेक्टेड। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको याद रख के आप लोगों को जो भी गणपति विसर्जन का जो भी कुछ आप लोगों को प्रोग्राम करवाना है उसको याद रख के आप लोगों को करना रहेगा। सो वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी, सॉरी, सभी लोगों को गणेश गणपति फेस्टिवल जो भी चल रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप यू ऑल विल वॉट एंजॉय दिस पर्टिकुलर गणेश फेस्टिवल। गणेश जी, ये सारे जो भी चैलेंजेस आज की डेट में पैंडेमिक सिचुएशन में जो भी आए हैं, डेफिनेटली इसको क्या करके जाएंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और हम सभी लोग एक दूसरे के सामने जल्द से जल्द आएंगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय एवरीवन। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क और यू कैन लीव द चैट रूम। If you have doubt, you can ask. Okay, if you don't have any doubt, then I can end the meeting. Thank you.